Good morning, students. Today we are going to start with our history chapter. Chapter number 1, India and the World. In this chapter, we are going to see three ages of Indian history and its division, sources of information of the medieval India, main features of medieval European history, knowledge of the East that Arab spread to the West. Children, in class 6th, you have studied the history and culture of ancient era. Now, in class 7th, you will learn about the history and culture of medieval era. Generally, the study of history has been divided into three parts: ancient age, medieval age, and modern age. It is very important to learn why and how this division has been made. When in a country or a particular place there is a change in the development of existing human civilization in areas like economic, political, administrative, and social aspects of life, then a new age is set to begin. In brief, the division of history into three periods denotes the various steps of the changes and progress made by human civilization. It can be said that these changes took place in all parts of the world at the same time. It is believed that the medieval Indian history begins from the 8th century AD, whereas in the countries of Europe, the medieval period is believed to have started from 5th century AD. अभी तक हमने एंशियंट एरा के बारे में पढ़ा था. नाउ इन क्लास 7th वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट मेडिवल एरा. मेडिवल एरा की हिस्ट्री और उसके कल्चर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं. हिस्ट्री 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एंशियंट एज में, मेडिवल एज और मॉडर्न एज में. और ये जो डिवीज़न है ये बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है लर्न करने के लिए. ह्यूमन सिविलाइजेशन में चेंजेस कब से आने लग गए थे? इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सोशल एस्पेक्ट के थ्रू नए नए चेंजेस आने लग गए थे और तभी ये डिवीज़न 3 पार्ट्स में डिनोट किया गया और इन्हीं चेंजेस और प्रोग्रेस को ह्यूमन सिविलाइजेशन के थ्रू अडॉप्ट किया गया था. ऐसा माना जाता है कि मेडिवल इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट हुई है 8th सेंचुरी एडी से एंड इन कंट्रीज़ ऑफ यूरोप की कंट्रीज़ में मेडिवल पीरियड स्टार्ट हुआ है 5th सेंचुरी एडी से. मतलब ये पीरियड अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग टाइम पे ऑकर हुआ, एक ही प्लेस पे एक ही टाइम पे स्टार्ट नहीं हुआ है. द मेडिवल पीरियड ऑफ इंडिया has been further divided into 2 parts: early medieval period 8th to 13th century AD and second later medieval period 13th to 18th century AD. The medieval Indian history is different from the ancient India's history in many ways. In the beginning of the medieval period, the Indians meet the followers of a new region. As a result of this, some changes took place in the society. Some of the languages which we now speak in India were developed during this period. Some of the food we eat and the clothes we wear also became popular during this period. We have more knowledge about this period because many sources are available which give us clear information about the history of this period. So, जो medieval period है वो इंडिया में कब 2 पार्ट में डिवाइड करा गया. फर्स्ट अर्ली मेडिवल पीरियड, सेकेंड लेटर मेडिवल पीरियड. अर्ली मेडिवल पीरियड का ड्यूरेशन क्या था? 8 से लेकर 13 सेंचुरी तक एंड
13th सेंचुरी से 18th सेंचुरी एडी तक लेटर मेडिवल पीरियड। मेडिवल इंडियन हिस्ट्री और एंशियंट इंडियन हिस्ट्री दोनों एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है इन मैनी वेज। कैसे? जो इंडिया है, इंडिया में मेडिवल पीरियड आने से एक नया रिलीजन स्टार्ट हुआ और उस चेंज के कारण सोसाइटी में भी बहुत सारे चेंजेस हुए। चेंजेस लैंग्वेज में हुए, जो हम अभी यूज़ करते हैं, जो लैंग्वेज इंडिया में अब यूज़ होती है वो लैंग्वेज वहाँ से अडॉप्ट हुई थी। एंड फूड वी ईट, द क्लोथ्स वी वियर, ये सब पॉपुलर चेंजेस थे जो मेडिवल पीरियड में हुए थे एंशियंट पीरियड से। एंड वी आर हैविंग नॉलेज बिकॉज वो चीज़ें हमें विजिबल है अलग अलग सोर्सेज से। बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं जहाँ पे हमें उस पीरियड की इंफॉर्मेशन मिलती है, इसीलिए हम इस चीज़ से एग्री करते हैं। नाउ सोर्सेज ऑफ स्टडी ऑफ मेडिवल इंडिया। You may remember that there are two main sources to know about the ancient history: literary sources and archaeological sources. The same is true with the medieval period. Ancient history में दो सोर्स थे, लिटरेरी एंड आर्कियोलॉजिकल, और ऐसे ही सोर्सेज मेडिवल पीरियड के लिए भी अवेलेबल हैं। टू know about the medieval period, a great variety of literary sources are available, like writing on palm leaves and birch bark. The archaeological sources, we have a great deal of inscriptions written on plates of copper or on stones. From the 13th century, paper was used for writing. A number of these writings still exist. Some of them were chronicles or accounts of the life and activities of various rulers and dynasties. Some are memories or autobiographical accounts of the life of the rulers. During this period, some foreign visitors also came to India with the Turkish invaders who had written about the Delhi Sultanates and Mughal rulers. The famous among them were Ibn Battuta, Marco Polo, Burney, Niccolo Conti, Abdur Rajak, Bernier and Tavernier. मेडिवल पीरियड के बारे में जानने के लिए जो लिटरेरी सोर्सेज हैं उसमें राइटिंग्स ऑन पाम लीव्स और ब्रिच बार्क अवेलेबल है। मीन्स लीव्स के ऊपर लिखा हुआ और पेड़ की जो बार्क रहती हैं उस पर लिखे हुए कुछ राइटिंग्स अवेलेबल हैं। दोज कम अंडर लिटरेरी सोर्सेज। और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के लिए इंस्क्रिप्शंस रिटर्न हैं प्लेट्स ऑफ कॉपर्स पे या स्टोन्स पे। 13th सेंचुरी में पेपर का इन्वेंशन हुआ, पेपर राइटिंग अवेलेबल हुई और वो सब अभी भी एग्जिस्ट करती हैं। उनमें से कुछ क्रॉनिकल्स हैं और कुछ अकाउंट ऑफ लाइफ एक्टिविटीज़ हैं जो अलग अलग रूलर्स और डायनेस्टीज़ के बारे में बताते हैं। सम आर द मेमोरीज और ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट्स ऑन द लाइफ ऑफ रूलर्स। इस पीरियड में कुछ फॉरेन राइटर्स भी आए थे जिनके सोर्स भी अवेलेबल हैं। जो टर्किश इन्वेडर्स आए थे उन्होंने दिल्ली सल्तनत एंड मुगल रूलर्स के बारे में लिखा था। एंड दीज आर सम ऑफ द फेमस अमंग देम। आफ्टर द 15th and 18th century, the Mughal ruled almost over the whole of India. Some of the Mughal rulers had written autobiographies about their lives, government, and important events. Others had written accounts about the lives of the rulers. Babarnama, Humayunama, Akbarnama, Tujuk-e-Jahangir, Badshah-nama, etc. are important literary sources of these periods. The
Contemporary royal orders and royal correspondence are also important sources of the study of medieval history. 15 से 18 सेंचुरी के बीच में बहुत सारे मुगल रूलर्स थे जिन्होंने होल इंडिया पे रूल करा था, एंड वो मुगल रूलर्स ने अपनी ऑटोबायोग्राफीज लिखी थी अबाउट देयर लाइफ, गवर्नमेंट एंड सम इम्पॉर्टेंट इवेंट्स. कुछ रूलर्स ने कुछ अकाउंट्स बनाए थे ऑन द लाइव्स ऑफ द रूलर्स, जैसे बाबरनामा, हुमायूंनामा, अकबरनामा एक्सेट्रा. और ये सब इम्पॉर्टेंट लिटरेरी सोर्सेज हैं इस पीरियड के. कुछ रॉयल ऑर्डर्स थे और रॉयल करस्पॉन्डेंस थे, वो भी इम्पॉर्टेंट सोर्स बन गए मेडिवल हिस्ट्री के. इन द सेम वे द कोर्ट राइटर्स ऑफ द local rulers, thinkers and philosophers have also written books which are also a source of study about the social and political life of the period. Among these books, the Katha Sarita Sagar, Vihar Katha, Prithviraj Raso, Raj Tarangini are important. Besides literary, many temples, mosques, tombs, minarets and beautiful buildings were constructed all over India. These archaeological remains tell us about the art and architecture of the medieval period. इन सब ऑटोबायोग्राफीज और रिटन अकाउंट्स के अलावा कुछ बुक्स भी थी जो एक लिटरेरी सोर्स का वर्क करती थी, जो पॉलिटिकल और सोशल लाइफ के बारे में हमें बताती थी ऑफ मेडिवल पीरियड. एंड लिटरेरी सोर्सेज के अलावा जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज थे वो विजिबल होते थे टेम्पल्स, मॉस्क्यूज, टॉम्स एक्सेट्रा में, एंड उनके थ्रू हमें आर्ट एंड आर्किटेक्चर पता पड़ता था मेडिवल पीरियड का. दीज आर सम ऑफ द कॉइन्स विच आर ऑफ मेडिवल पीरियड. मेडिवल पीरियड में कुछ इस तरह के कॉइन्स यूज आते थे. द डिवीजन ऑफ द पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री इज बेस्ड ऑन अ रेडिकल चेंजेस इन द इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशंस. जो हिस्ट्री में डिविजन्स हुए हैं वो डिविजन्स एक रेडिकल चेंज पे बेस्ड हैं, और रेडिकल चेंज कहाँ से होता है? इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशन के थ्रू. In India, the medieval period began from 8th century AD. इंडिया में medieval period स्टार्ट होता है 8th century AD से. We have more and authentic sources of information available to know about medieval history compared to the ancient period. अगर हमें medieval history और ancient period को कंपेयर करना है तो हमारे पास बहुत सारे ऑथेंटिक सोर्सेज हैं जिनमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है इन दोनों पीरियड्स को कंपेयर करने के लिए. द पॉलिटिकल कंडीशंस इन द इंडिया ड्यूरिंग द अर्ली मेडिवल पीरियड. इन द अर्ली मेडिवल पीरियड नॉर्दर्न इंडिया was divided into a number of kingdoms. These kingdoms were in constant conflict with each other for the expansion of their kingdoms. There were many kingdoms in South India too, of which the Chola kingdom was the most powerful. Their kingdom extended up to the Coromandel and Madras, that is Chennai. Later, during the 9th century, the Chola kings made Tanjore their capital. After defeating the Pandya rulers, the Chola rulers divided their kingdom into different units for efficient administration, consolidated the economy, and gave patronage to literature, art and architecture. They had a very powerful naval fleet. In 1025 AD, the Chola king Rajendra I conquered Malaya and Sumatra islands. The Chola kingdom had trade relations with China and countries of South Asia.
जो पॉलिटिकल कंडीशन थी अर्ली मेडिवल पीरियड के टाइम पे वो कुछ इस तरह थी। नॉर्दर्न इंडिया बहुत सारे अलग अलग किंगडम्स में डिवाइड हो चुका था और इन सारे किंगडम्स में अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे। देयर वर किंगडम्स ऑफ साउथ इंडिया टू, उसमें साउथ इंडिया के किंगडम्स भी इन्वॉल्व थे और उसमें से एक चोला किंगडम था जो बहुत पावरफुल किंगडम था। उन्होंने अपना किंगडम एक्सटेंड करा कोरोमंडल से लेकर मद्रास तक एंड लेटर 9th सेंचुरी में जो चोला किंग्स थे उन्होंने तंजौर को अपना कैपिटल बना लिया आफ्टर डिफीटिंग पंड्या रूलर्स को हराने के बाद। द चोला रूलर्स डिवाइडेड their किंगडम इनटू डिफरेंट यूनिट्स सो दैट वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन को और अपने लिटरेरी आर्ट एंड आर्किटेक्चर इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से परफॉर्म करवा सकें। इसीलिए उन्होंने अपने किंगडम को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इन 1025 AD जो एक किंग थे राजेंद्र वन ऑफ चोला किंग, उन्होंने माल्या एंड सुमित्रा आइसलैंड को भी अपने ऑक्यूपाई कर लिया and Chola kingdom had relation of trade means business के relations हो चुके थे from China and countries of South Asia। चाइना और साउथ एशिया की कंट्रीज के साथ चोला किंगडम ट्रेड कर रहा था, बिजनेस कर रहा था। यूरोप इन medieval period, the decline of powerful Roman Empire in the Europe began in the 5th century AD. In many places, small regional powers emerged. These small rulers, in order to maintain their powers, used to give a piece of land that is known as feudum instead of cash and salaries to officers in return for military help. The word feudalism comes from the Latin word feudum, which means a piece of land which is granted in return for services. The people who acquired such lands were known as feudal lords. These feudal lords were responsible for the security of their feudum. They used to live in castles. The feudal lords had absolute power over their peasants and workers. They lived a luxurious life and often treated the peasants very badly. The serfs, hereditary laborers, were the largest and the lowest social group in the medieval European society. They lead a very miserable life and could not raise their voice against the atrocities committed on them. रोमन एम्पायर की पावर डिक्लाइन होने लग गई यूरोप में 5th सेंचुरी AD में, और तभी अलग अलग पावर्स, स्मॉल रीजनल पावर्स स्टार्ट हुई और वो सारे स्मॉल रूलर्स अपनी पावर को मेंटेन रखने के लिए एक पीस ऑफ लैंड एज फ्यूडम देते थे मिलिट्री हेल्प के लिए ऑफिसर्स को, एंड वो लैंड का पीस दिया जाता था कैश और सैलरी के प्लेस पर। कैश और सैलरी नहीं देते हुए वो उन्हें अपनी लैंड का पीस देते थे। जो वर्ड फेड्यूलिज्म है ये कहाँ से आया? ये एक लैटिन वर्ड से आया, दैट इज़ फ्यूडम। इसका मतलब होता है एक पीस ऑफ लैंड जो हम किसी और को देते हैं इन रिटर्न ऑफ सर्विसेज। अगर हम उनसे कोई सर्विस लेते हैं तो इन रिटर्न में हम उन्हें एक पीस ऑफ लैंड देते हैं। और जो लोग इस पीस ऑफ लैंड को एक्वायर करते थे उन्हें बोलते थे फ्यूडल लॉर्ड्स। जो ये फ्यूडल लॉर्ड्स थे वो ही रिस्पॉन्सिबल होते थे सिक्योरिटी के लिए, और वो कैस्टल्स में रहते थे। कैस्टल्स मीन्स बड़े बड़े महलों में रहते थे। उनके पास एब्सोल्यूट पावर थी ओवर देयर
वर्कर्स, जितने भी वर्कर्स उनके अंडर काम करते थे उन पे उनकी बहुत ज़्यादा पावर थी और वो एक लग्जूरियस लाइफ में रहते थे और वो सारे पीजेंट्स को बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करते थे। जो सर्फ्स होते थे, सर्फ्स मतलब हेरिडेटरी लेबरर्स, वो बहुत लार्ज नंबर पे थे पर उनका ग्रुप बहुत स्मॉल था इन मेडिवल यूरोपियन सोसाइटी। इसीलिए उनकी लाइफ बहुत मिजरेबल थी, अच्छी नहीं थी और वो अपने हक के लिए कभी खड़े भी नहीं हो सकते थे या वो कभी जो चीज़ें उनके लिए गलत हो रही थी उसके अगेंस्ट भी खड़े नहीं हो सकते थे। द मेन फीचर ऑफ द अर्ली मेडिवल पीरियड इन द यूरोप वॉज द डेवलपमेंट ऑफ फेड्यूलिज्म। द रिजल्ट ऑफ फेड्यूलिज्म वॉज द इमर्जेंस ऑफ सर्फडम। This cast a dark shadow on the society of Europe at that time. जो मेडिवल पीरियड का यूरोप में मेन फीचर था वो ये था कि डेवलपमेंट ऑफ फेड्यूलिज्म हुआ था और फेड्यूलिज्म के रिजल्ट से सर्फिडम्स बहुत ज़्यादा हो गए थे और वो एक बहुत डार्क शेडो की तरह वर्क कर रहा था यूरोप की सोसाइटी पे उस समय। राइज ऑफ अरब्स। द अरब्स ऑफ वेस्टर्न एशिया were divided into different tribes which were always at war with each other due to the absence of central power. In the 7th century AD, Prophet Muhammad preached the religion of Islam. This united the Arab tribes and soon they became a political power. They conquered many parts of Western Asia, Jordan, Syria, Iraq, Turkey, Persia and Egypt. Gradually, the Arabs conquered more territories, especially in northern Africa and reached Spain. अरब्स कब से स्टार्ट हुए थे? जो वेस्टर्न एशिया के अरब्स थे वो अलग अलग ट्राइब्स में डिवाइड हुए और वो हमेशा एक दूसरे से वॉर करते थे बिकॉज ऑफ द सेंट्रल पावर। 7th सेंचुरी एडी में प्रॉफिट मोहम्मद ने इस्लाम रिलीजन स्टार्ट करा और इस्लाम रिलीजन के थ्रू सारे अरब्स यूनाइटेड हुए, अरब ट्राइब यूनाइटेड हुई एंड दे बिकेम पॉलिटिकली पावरफुल। दे हैड कॉन्कर्ड मैनी पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न एशिया, उन्होंने अलग अलग बहुत सारे एरियाज को अपने अंडर कर लिया and gradually their territory reached North Africa and Spain. धीरे धीरे वो नॉर्थ अफ्रीका और स्पेन तक भी रीच हो गए। Their territory extended up to the north western parts of India. उनकी टेरिटरी नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया तक भी एक्सटेंड हो गई। The Arabs were expert traders. The establishment of political power encouraged the development of trade. Soon, the Arabs were trading with India, China, Europe, and Eastern and Western Africa. Trade had made the Arabs rich, and they used the wealth for the development of art, science, and literature. The Arabs spread the knowledge which they acquired from the countries with which they had trade relations to distant lands. The ancient Greek and Indian scientific work was translated into Arabic. It is worth mentioning that the astronomical and mathematical knowledge of India reached the Western countries through the Arabs. The Arabs also carried the new inventions of China like gunpowder, paper and compass to the countries of Europe. जो अरब्स थे वो ट्रेड में एक्सपर्ट थे और उनकी जो पॉलिटिकल पावर थी उन्हें एनकरेज करती थी कि वो अपने ट्रेड को इंक्रीज करे। धीरे धीरे अरब्स ने ट्रेडिंग करना स्टार्ट करी इंडिया, चाइना, यूरोप, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न अफ्रीका के साथ और उनके ट्रेड ने उन्हें बहुत
रिच एंड वेल्दी बना दिया। एंड उसी के थ्रू उन्होंने आर्ट, साइंस और लिटरेचर को डेवलप करा। उन्होंने अरब नॉलेज को अलग अलग कंट्रीज़ में स्प्रेड करा और उनके ट्रेड रिलेशंस के थ्रू उन्होंने अपने एरिया को इंक्रीज़ करा। जो एंशियंट ग्रीक्स थे एंड इंडियन साइंटिफिक वर्क भी उन्होंने अरबिक में कन्वर्ट करा। एस्ट्रोनॉमिकल एंड मैथमेटिकल नॉलेज इंडिया का वो वेस्टर्न कंट्रीज तक लेके गए। अरब्स ने नए इन्वेंशंस जो चाइना के थे लाइक गन पाउडर, पेपर एंड कंपास, वो भी यूरोप कंट्रीज तक पहुंचाया। इंडिया वॉज इन कॉन्स्टेंट कॉन्टैक्ट विद द अरब्स थ्रू ट्रेड। हर प्रायोरिटी एंड यूनिक कल्चर attracted the rulers of the northwest. From the 7th century AD, the Arabs came to India as conquerors. In the beginning, they attacked to plunder wealth, but later they tried to establish their empire. The Turks became successful in this task, and with this began the medieval history of India. इंडिया का बहुत अच्छा कांटेक्ट रहा अरब्स के साथ ट्रेड के कारण। यूनिक कल्चर जो था और जो प्रॉस्पेरिटी थी इंडिया की, उन्होंने उन्हें अट्रैक्ट करके रखा। 7th सेंचुरी एडी में अरब्स इंडिया आए और उन्होंने कोशिश करी कि वो इंडिया की सारी वेल्थ गैदर कर लें, बट धीरे धीरे वो यहीं के एम्पायर बन गए और यहीं पे उन्हें इस्टेब्लिश करने लग गए। जो टर्क्स थे वो भी अपनी टास्क में सक्सेसफुल हो गए और यहीं से शुरुआत हुई मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया की। मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया की शुरुआत अरब्स के आने के बाद ही हुई। राइज ऑफ इस्लाम रीजन इन अरेबिया इन द 7th सेंचुरी एडी। इस्लाम रीजन स्टार्ट हुआ था अरेबिया में 7th सेंचुरी एडी में। द वेरिंग ट्राइब्स वर यूनाइटेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लाम एंड दे स्टैब्लिश्ड अ वास्ट एम्पायर। जो अलग अलग ट्राइब्स थी वो सब यूनाइट हुई अंडर द पावर ऑफ इस्लाम और उन सब ने मिलकर एक बड़ी एम्पायर स्टैब्लिश करी। द नॉलेज ऑफ द ईस्ट रीच द वेस्ट थ्रू अरब ट्रेड्स। ईस्ट का नॉलेज वेस्ट तक पहुंचना ये पॉसिबल हुआ था अरब ट्रेड्स के थ्रू। द इमेंस वेल्थ ऑफ इंडिया एंड द एम टू स्प्रेड इस्लाम एनकरेज द अटैक्स फ्रॉम द वेस्ट। वेस्ट से जो अटैक्स हो रहे थे वो इंडिया की वेल्थ के लिए और इस्लाम को स्प्रेड करने के लिए हो रहे थे। द टर्क्स वर सक्सेसफुल इन एस्टैब्लिशिंग देयर एम्पायर इन इंडिया। जो टर्क्स थे वो भी सक्सेसफुली इंडिया में अपना एम्पायर स्टैब्लिश कर सकें। सो इन दिस चैप्टर वी हैव सीन हाउ द मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया हैज़ स्टार्टेड। थैंक यू।